So, welcome to the students. Good evening. And जो आज मेरा लेक्चर है that is on the hydrostatic forces on the curved surface when it is submerged in the liquid or water, you can say, right? तो ये आज मेरा टॉपिक है. इससे पहले हमने hydrostatic forces on the vertical plane, hydrostatic forces acting on the inclined plane when they are immersed in the water, and then उसके बाद मैंने लॉक गेट का आपको बताया था कि लॉक गेट के ऊपर किस तरीके से फोर्सेस एक्ट करती हैं, व्हाट इज द लॉक गेट and how the forces are acting on that. So next one, this is a very important topic. You can say that is the hydrostatic forces on the curved surface submerged in the liquid. You understand? So just see from the diagram, right? So consider, you can say that consider this is the curved surface AB. You understand? That is, I will say that the 1/4 of the cylinder. Suppose this is 1/4 of the cylinder. This is the curved surface, which is having, you can say that R is the radius of this from here to here. That is the R is the this one length, and W that is the width of the curved surface. You understand? तो खैर ये चीजें बाद में आएंगी. तो पहले क्या है कि ये मैंने एक कर्व सरफेस है. दिस इज द कर्व सरफेस AB which is attached with the, you can say this is the vertical ball which is having no use. मैंने इसको इसके साथ अटैच किया है, and that is immersed, submerged in the water. So what we have to find out? We have to find the hydrostatic forces. हमारा objective क्या है? What is our objective? Our objective is to find the hydrostatic forces acting on the curved surface when it is submerged on the water. This is our objective. You understand? So let us start the topic. इसे हम किस तरीके से find out करेंगे? You understand? So this is the curved surface which is immersed in the water. You understand? So here I will consider a small strip. I will consider the small strip. This is the small strip I have considered on the curved surface AB, which is having a very small area DA, you can say, right? तो जहां पे हम क्या करें, कंसिडर, थोड़ा लिख लेते हैं इसको, कंसिडर द स्मॉल स्ट्रिप, consider the small strip AB, consider the small strip on the curved surface AB, right? Having the small area DA. So DA is the area of this small strip which we have taken on the curved surface, right? So this जो आपने strip लिया है, this is at the depth of H from the free surface of the water. इसका जो depth है free surface of the water, this is given as H, right? So you can say at the depth H from the free surface of water. You understand? So density of the water, you can say, मैं इसमें assume करूंगा density of the water rho, that is constant. जो density है liquid की या water की, that is constant, that is given here. तो ये आपने, we have taken very small strip here on the curved surface DA, on the curved surface which is having very small area DA, right? अब देखिए ये जो आपकी स्मॉल स्ट्रिप है, तो इसके ऊपर ये जो वाटर है इसकी फोर्स इसके ऊपर एक्ट करेगी. यू अंडरस्टैंड दिस? सपोज दिस इज अ वेरी स्मॉल फोर्स DFP which is acting on the small strip which I have taken here.
और जो इसकी डायरेक्शन होगी, एज आई टोल्ड यू सो मेनी टाइम्स, दैट दिस फोर्स विल एक्ट नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ दिस स्मॉल एरिया। ये जो फोर्स DFP है, दिस इज आई हैव टेकन वन फोर्स which is acting on this. So you can say this is this curved surface that is made of different small strip का, जहां पर भी ये सपोज करो ये स्ट्रिप है, जहां पर भी स्ट्रिप है, जहां पर भी स्ट्रिप है, इस तरीके से स्मॉल स्ट्रिप का ये कर्व सरफेस आपका बना होगा। यू अंडरस्टैंड हियर? तो जो इसकी फोर्सेस हैं वो इस तरीके से, जैसे ये है, इसकी फोर्स इस तरीके से एक्ट करेगी, इसकी फोर्स इस तरीके से एक्ट करेगी, अगर जहां पे आती इस तरीके से एक्ट करेगी, जहां पे अगर कोई स्मॉल स्ट्रिप है तो ये फोर्स इस तरीके से एक्ट करेगी। यू अंडरस्टैंड? एंड ऑल ये सारी सपोज करो ये जहां पे स्ट्रिप है, दिस इज स्ट्रिप, दिस इज स्ट्रिप, दिस इज स्ट्रिप एंड दिस इज स्ट्रिप। सो फ्रॉम हियर यू हैव सीन दैट कर्व सरफेस के ऊपर जो फोर्स की डायरेक्शन होगी ये एट द डिफरेंट प्लेन के ऊपर होगी। यू अंडरस्टैंड दिस? ये जो जे स्ट्रिप है, ये जहां पे है, दिस स्ट्रिप इज एट दिस पॉइंट, दिस स्ट्रिप एट दिस पॉइंट। यू कैन से दिस इज DFP1, दिस इज DFP2, दिस इज DFP3, DFP4, लाइक दिस। यू अंडरस्टैंड? तो जो आपका फोर्स होगा, जो आपका प्रेशर है, तो प्रेशर इसमें क्या होगा? प्रेशर तो आपको पता है, दैट इज रो इंटू G इंटू H, राइट? This is the pressure. Rho is the density of the liquid, G is the center of gravity, and H is the distance. H is the distance of this strip from the free surface of water. तो इसके ऊपर इतना प्रेशर एक्ट करेगा। तो अगर मैं फोर्स की बात करूं, therefore DFP क्या है? DFP is the small force which is acting on the strip. जो मैंने स्मॉल स्ट्रिप लिया है, दिस स्ट्रिप आई हैव टेकन, ये जो आपका स्ट्रिप लिया है आपने, इस स्ट्रिप के ऊपर ये जो स्मॉल फोर्स है, आई विल से दैट दिस स्मॉल फोर्स इज DFP। तो उसको मिटा दीजिए आप, ये तो मैंने आपको ऐसे शो बताया था इस तरीके से, सो देयर इज नो नीड ऑफ दिस, राइट? तो DFP इज द स्मॉल फोर्स acting on the strip, right? और जो इसकी डायरेक्शन होगी, दिस इज नॉर्मल टू द स्ट्रिप। इसकी डायरेक्शन क्या होगी? दैट इज नॉर्मल टू द स्ट्रिप। तो DFP कितना आएगा? दैट इज, अगर मैं DFP क्या है? DFP इज द फोर्स विच इज एक्टिंग एट द स्ट्रिप। सो DFP आपका आएगा प्रेशर इनटू एरिया, दैट इज होता है प्रेशर इनटू एरिया। तो आप कह सकते हैं रो इनटू G इंटू H इंटू D, राइट? रो इंटू G इंटू H इंटू DA। दिस इज द स्मॉल फोर्स, दिस इज द प्रेशर फोर्स विच इज एक्टिंग ऑन द स्मॉल स्ट्रिप। जहां तक चीजें क्लियर हैं आपको? ये आपकी आगे प्रेशर फोर्स विच इज एक्टिंग ऑन द स्मॉल स्ट्रिप, इसको मिटा दीजिए। तो जहां पे लिखते हैं आप, तो DFP मैंने लिखा, ये आपका जो DFP, दिस इज द फोर्स एक्टिंग ऑन द स्मॉल स्ट्रिप, दिस इज इक्वल टू रो into G into H into DA, where DA is the area of the small strip, right? अब देखिए यहां पे we have to calculate the total force on the curved surface. हमें क्या फाइंड आउट करना है? We have to find the total force on the curved surface. तो if जो अगर मैं इस तरीके से इसको करूं, टोटल फोर्स हमें निकालना है, मींस अगर मैंने टोटल फोर्स निकालना है, इसका टोटल फोर्स, तो ये FP, तो मैं इसको ऐसे कर सकता हूं, रो G H इंटू DA। कैन आई डू लाइक दिस? क्योंकि मैं आपको ये बता रहा हूं कि सपोज दिस इज ए स्मॉल स्ट्रिप
and this curved surface is made of number of such type of small strips. ये जो कर्व सरफेस है ये that is made of, you can say that is made of number of small strip. तो क्या मैं इसका समेशन करके टोटल फोर्स कैलकुलेट कर सकता हूं? कैन आई डू द समेशन ऑफ दिस एंड देन आई विल फाइंड द टोटल फोर्स. समेशन कहां से? 0 से a, 0 से a पूरा कंप्लीट एरिया का अगर मैं समेशन करूं, क्या कैन आई फाइंड द टोटल फोर्स? नो. मैं इस तरीके से समेशन करके इसकी टोटल फोर्स को कैलकुलेट नहीं कर सकता. यू अंडरस्टैंड? अब आप सोचेंगे कि व्हाई आई कैनॉट सबमिट, व्हाई आई कैनॉट इंटीग्रेट दिस, व्हाई इट इज नॉट फिजिबल. मैं क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि जब मैं आपको बता रहा हूं कि दिस स्मॉल, यू कैन से दिस कर्व स्पेस दैट इज मेड ऑफ सच टाइप ऑफ, ये जो स्मॉल स्ट्रिप ली है ऐसी ही बहुत सारी स्ट्रिप से बना है और हर स्ट्रिप के ऊपर जो फोर्स एक्ट कर रही है दैट इज द नॉर्मल फोर्स, दैट इज डी. अगर मैं, जैसे मैंने आपको बताया, जहां पे स्ट्रिप है ये डी, ये एक स्ट्रिप है तो डी जब वो फोर्स एक्ट करेगी दैट इज DFP1, DFP2, DFP3, DFP4 लाइक दिस. तो मैं इसकी समेशन क्यों नहीं कर सकता? वाई आई कैनॉट डू लाइक दिस. कहने का मतलब है कि मैं अगर टोटल फोर्स आपकी निकालनी है तो टोटल फोर्स आई कैनॉट कैलकुलेट बाय यूजिंग दिस रिलेशन. मैं समेशन करके इसको इंटीग्रेट करके इसकी टोटल फोर्स मैं कैलकुलेट नहीं कर सकता. वाई? व्हाट इज द रीजन? नाउ यू अंडरस्टैंड. इसे अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें. सपोज यू आर हैविंग ए वर्टिकल स्पेस. ये आपका वर्टिकल स्पेस है, राइट? तो वर्टिकल स्पेस में दैट इज, आप देखेंगे वर्टिकल स्पेस है तो जो आपकी फोर्सेस हैं, ये एक फोर्स है, ये सपोज दूसरी फोर्स, तीसरी फोर्स, लाइक दिस एट द डिफरेंट स्टेप्स, राइट? तो डिफरेंट स्टेप्स के ऊपर सपोज मैं कहता हूं कि there is one step, step number 1, there is second step number 2, that is third step, small steps 4, like this, 5, 6, 7 and 8. तो अगर मुझे टोटल फोर्सेस का कैलकुलेट करना है, suppose I can add all the steps. You understand? तो मैं इनके ऊपर जितनी, हर स्टेप के ऊपर जो फोर्स है उसकी मैं समेशन ले सकता हूं. भाई कैसे ले सकता हूं? बिकॉज दिस इज ए वर्टिकल प्लेन, यू कैन से, एंड द फोर्सेस आर एक्टिंग. ये जो इसकी फोर्स होगी, वाटर की जो फोर्स है, सपोज इट इज समर्स आल्सो इन द वाटर, तो जो फोर्स है इसकी दैट इज एक्टिंग normally on this plane. What all these steps you can say which I am taking here, they lie on one plane. देखिए वो क्या है, एक प्लेन के ऊपर लाई कर रही है. प्लेन इज सेम, they lie on one plane. So ये जो पैरेलल फोर्सेस हैं they will develop the system of the forces. इससे क्या होगा, एक सिस्टम फोर्सेस का बनेगा, सेम टाइप ऑफ सिस्टम ऑफ फोर्सेस बनेगा पैरेलल फोर्सेस का. सो देन वी कैन ऐड इट, हम इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं. यू अंडरस्टैंड? हम जो वर्टिकल प्लेन है इसको हम इंटीग्रेट कर सकते हैं बिकॉज द फोर्सेस दे आर एक्टिंग ऑन द सेम प्लेन. लाइकवाइज अगर मैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की बात करूं, सपोज दिस इज योर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल प्लेन, दिस इज योर हॉरिजॉन्टल प्लेन, और इसमें भी जो आपकी फोर्सेस हैं लाइक दिस, द फोर्सेस आर एक्टिंग लाइक दिस. सो दीज आर आल्सो द पैरेलल फोर्सेस एक्टिंग ऑन द वन प्लेन. दे आर पैरेलल टू ईच अदर and they are vertical, normal to this plane. This is horizontal plane, they are vertical to this, so they will also form the parallel forces system. ये भी पैरेलल फोर्सेस का सिस्टम डेवलप करेंगी. तो इस ऐसे केस में मैं क्या कर सकता हूं
कि अगर मैं स्मॉल स्टेप लेके इफ आई हैव टू फाइंड द टोटल फोर्स, तो जो स्मॉल स्टेप का जो फोर्स आएगा उसको मैं इंटीग्रेशन करके मैं टोटल फोर्स निकाल सकता हूं। लाइकवाइज इन द हॉरिजॉन्टल जो कंपोनेंट, जो हॉरिजॉन्टल सरफेस है, प्लेन है, उसके ऊपर भी मैं इसी तरीके से सेम तरीके से निकाल सकता हूं। नाउ कम टू द कर्व सरफेस। अब कर्व सरफेस की बात करते हैं। तो कर्व सरफेस में क्या है, अब देखिए सपोज अगर एक स्ट्रिप ये है मैंने जो लिया है, दूसरी स्ट्रिप जहां पे है, तीसरी स्ट्रिप जहां पे है, जहां पे है, जहां पे है, तो जहां पे आप देखें they are not lying on the same plane, you understand, they are not lying on the same plane but they are lying on the different plane। ये किसके ऊपर लाई कर रहा है, डिफरेंट प्लेन के ऊपर लाई कर रहा है। they are not, although the forces are perpendicular to the respective strip but don't form the system of parallel forces। although these forces, ये जो मैं जे स्ट्रिप लेता हूं, जहां पे लेता हूं, जहां पे लेता हूं, तो जहां पे although these forces are perpendicular to the surface of the strip but these forces are not forming the parallel forces system। तो ये जो है parallel forces system फॉर्म नहीं कर रहा है because they are not lying on the same plane but they are lying on the different plane। तो ये आपको समझ आ गया why I am not taking the integration in this case, why it is not feasible कि अगर मुझे टोटल फोर्स निकालना है मैं स्मॉल स्ट्रिप जहां से ले लूं और स्मॉल स्ट्रिप के ऊपर उसकी फोर्स को कैलकुलेट करके तो क्या करूं, मैं इंटीग्रेट करूं होल एरिया। इंटीग्रेशन करने से टोटल फोर्स मिलेगा, वो मुझे टोटल फोर्स कर्व सरफेस में नहीं मिलेगा। यू अंडरस्टैंड। और आपको समझ आ गया कि क्यों नहीं मिलेगा। अगर वर्टिकल प्लेन की बात करता हूं, हॉरिजॉन्टल प्लेन की बात करता हूं, तो जो भी फोर्सेज इसके ऊपर एक्ट करती हैं दे आर नॉर्मल टू द प्लेन, they are perpendicular to the plane and moreover they are lying on the same plane, so they just form the parallel forces system, चाहे वो आपका वर्टिकल प्लेन है चाहे वो आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन है। बट कर्व सरफेस के ऊपर ये जो टोटल कर्व सरफेस है तो एक स्मॉल स्ट्रिप लेके मैं इसको इंटीग्रेट नहीं कर सकता। रीजन क्या है कि ये जो जितनी भी स्ट्रिप्स हैं और उनके ऊपर जो फोर्सेस एक्ट करेंगी they are not lying, ये जो स्ट्रिप्स हैं they are not lying on the same plane, they are lying on the different plane, so they will not form the system of parallel forces, so we cannot integrate this, right। तो इसका मतलब ये इंटीग्रेशन वाला टोटल फोर्स अगर मुझे निकालनी है तो ये इंटीग्रेशन वाला सिस्टम नहीं चलेगा। यू अंडरस्टैंड दिस। तो ये इंटीग्रेशन का नहीं चलेगा। देन हाउ वी कैन कैलकुलेट द टोटल फोर्स। आप क्या करेंगे, ये जो आपकी डीएफपी फोर्स है that has to be resolved in two components, that is one is the vertical component and one is the horizontal component। और फिर vertical component की फोर्सेस को फाइंड आउट करेंगे और horizontal component की फोर्स फाइंड आउट करेंगे and then we can get the total force, resultant force that is equal to the under root of horizontal forces का स्क्वायर प्लस वर्टिकल फोर्सेस का स्क्वायर, दैट इज द टोटल फोर्स एंड दैट इज द वे। तो मींस आपका जो स्टेप है वो क्या करेंगे, अब हम इसको दो कंपोनेंट में क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, दो कंपोनेंट में इसको रिजॉल्व करेंगे। अब देखिए ये आपका जस्ट सी हियर, जस्ट ये इसको मैं एनलार्ज कर देता हूं स्टेप को। दिस इज योर स्टेप, राइट, और दिस इज योर स्टेप। ये एनलार्ज फॉर्म में मैंने आपको बताने के लिए किया, राइट। सो दिस इज योर स्टेप एंड थोड़ा सा इसको खूबसूरत बना देते हैं जस्ट। तो ये आपका स्टेप है एंड दिस स्टेप आई से दिस, ये जो आपकी स्टेप है, जैसे ये स्टेप है, सो दिस इज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। So this strip is making ये आपका horizontal component है, so this strip is making an angle theta with the horizontal, you understand। this strip is making an angle theta with the horizontal। अब देखिए ये इस स्ट्रिप के ऊपर ये आपकी फोर्स डी, ये आपकी फोर्स क्या है, नॉर्मल फोर्स है DFP। This is the normal force is acting on this।
तो अगर मैं इसको दो कंपोनेंट में डिवाइड कर लेता हूं, ये आपका आ गया हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, राइट, ये आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और ये आपका आ गया, ये इसको फर्स्ट फोर्स, ये आपका आ गया वर्टिकल कंपोनेंट, एंड दिस इज योर वर्टिकल कंपोनेंट, राइट। जे आपका आ गया हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, मींस डी एफ पी एच, राइट, डी एफ पी एच, एंड दिस इज डी एफ बी, दिस इज योर वर्टिकल कंपोनेंट, यू अंडरस्टैंड। अब देखिए, दिस इज द एंगल थीटा, एक आपका ये प्लेन है, कौन सा है, दिस इज द स्ट्रिप, एंड दिस इज द एक्स एक्सिस आप कह सकते हैं, यू अंडरस्टैंड। अब इनके बीच में जो एंगल थीटा बनेगा, जस्ट अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। अब एंगल थीटा कहां पे बनेगा, या जहां पे एंगल थीटा बनेगा, या जहां पे एंगल थीटा बनेगा, दैट वी हैव टू सी। अब मुझे बताइए, ये जो आपकी ये फोर्स है, बिकॉज एंगल थीटा कहां पे होगा, एंगल थीटा आपका यहां पे होगा, वॉट एवर द एंगल इज मेड बिटवीन द टू प्लेन, सेम एंगल विल बी मेड बाई देयर नॉर्मल आल्सो। तो ये लिख लीजिए, वॉट एवर द एंगल मेड between the two planes, whatever the angle made between the two planes, the same angle will be formed, the same angle between will be made by their normal, formed by their normals। दिस इज ए इंपॉर्टेंट चीज, ये आप हमेशा याद रखिएगा। मैं लिख देता हूं जहां पे इंपॉर्टेंट नोट, इसे नोट कर लीजिए आप, इंपॉर्टेंट। ये क्या है, व्हाट इज देयर, वॉट एवर द एंगल मेड बिटवीन द टू प्लेन्स, दिस इज वन प्लेन, आई विल से दिस इज आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन, एंड दिस इज सेकंड प्लेन, वर्टिकल प्लेन, राइट। एक आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन है, एक आपका ये इंक्लाइंड प्लेन है, यू अंडरस्टैंड। तो इनके बीच में जो एंगल है, दैट इज द एंगल थीटा। वॉट एवर द एंगल मेड बिटवीन द टू प्लेन्स मींस एंगल थीटा, द सेम एंगल, देखिए क्या है, द सेम एंगल विल बी फॉर्म्ड बाय देयर नॉर्मल्स। अब मुझे बताइए, ये जो आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन है, इसका वर्टिकल प्लेन क्या है, ये आपका वर्टिकल प्लेन है, दिस इज द वर्टिकल प्लेन, यू अंडरस्टैंड। ये क्या है, ये आपका वर्टिकल प्लेन हो गया ना, सॉरी, इसका हॉरिजॉन्टल प्लेन का नॉर्मल क्या होगा, ये आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन का नॉर्मल होगा। ये आपका नॉर्मल किसका है, वर्टिकल, जो वर्टिकल कंपोनेंट है, ये आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन का नॉर्मल है। और मुझे बताइए, जो ये आपका इंक्लाइन प्लेन है, इसका नॉर्मल क्या है, ये जो फोर्स जहां पे ये जो फोर्स DFP है, दिस इज द नॉर्मल ऑफ दिस प्लेन नंबर सेकंड, जो आपकी इंक्लाइन स्ट्रिप है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो एंगल बिटवीन द टू प्लेन्स, ये एक हॉरिजॉन्टल प्लेन था, एक आपका इंक्लाइन प्लेन है, ये जो स्ट्रिप मैंने लिया है, इसका जो वर्टिकल नॉर्मल कंपोनेंट क्या है, जे वाला, और जो इसका स्ट्रिप का जो नॉर्मल कंपोनेंट क्या है, ये वाला। तो इसका मतलब जो एंगल थीटा होगा, दैट इज
बिटवीन द वर्टिकल कंपोनेंट एंड दिस कंपोनेंट, एंगल थीटा जहां पे बनेगा। यू अंडरस्टैंड? एंगल थीटा कहां पे बनेगा? जहां पे बनेगा। यू अंडरस्टैंड दिस? तो ये चीज आप नोट कर लीजिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखिए जहां से हमें, अब डीएफ कंपोनेंट को मैंने, अब मुझे बताइए ये जो आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, ये वाला डी एफ पी एच, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट डी एफ पी एच, ये किसके बराबर होगा? डी एफ पी एच, ये क्या होगा? दिस इज इक्वल टू डी एफ पी साइन थीटा, क्योंकि एंगल थीटा किसके बीच में है? इस नॉर्मल में और इसमें, तो ये आपका क्या होगा? साइन थीटा आ जाएगा, जिसके बीच में एंगल बनेगा वो cos थीटा होगा। तो डी एफ पी पी एच, ये कंपोनेंट आपका आ गया डी एफ पी साइन थीटा। ये नोट करो, वेरी इंपॉर्टेंट वन। ये क्लियर हो गया? डी एफ पी एच कैसे डी एफ पी साइन थीटा आया? क्योंकि जो एंगल थीटा था वो था दैट इज बिटवीन द वर्टिकल एंड दिस, इसके साथ एंगल नहीं था, एंगल जहां पे था, जिसके साथ एंगल होता है वहां पे cos थीटा होगा। तो इसका मतलब जो डी एफ बी प्लेन है, ये अगर आपका डी एफ एच है तो ये आपका था डी एफ बी प्लेन, देयरफॉर डी एफ पी बी मींस वर्टिकल प्लेन, ये क्या होगा? डी एफ पी, क्योंकि बिकॉज यू आर रिजॉल्विंग दिस फोर्स डी एफ पी इन टू कंपोनेंट, तो ये होगा डी एफ पी cos थीटा, डी एफ पी cos थीटा। यू अंडरस्टैंड? तो ये आपको संभाल दो वर्टिकल कंपोनेंट, एक वर्टिकल कंपोनेंट डी एफ पी एच मिल गया और डी एफ बी बी मिल गया। इसको आप इस तरीके से लिख लीजिए। यू अंडरस्टैंड दिस? सो दिस इज क्लियर? जहां तक ये चीजें क्लियर होगी इसको मिटा दीजिए अब। तो अगर मैं टोटल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की बात करूं, क्योंकि हमें इसका टोटल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा, पहले लिखिए आप हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एफ एच। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एफ एच, अगर मुझे टोटल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकालना है तो पहले हम इसको निकालते हैं, राइट? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एफ एच, दिस इज, आप कह सकते हैं एफ एच इज इक्वल टू एफ एच, किसके बराबर होगा? दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ए, राइट? किसके बराबर होगा? डी एफ पी एच, राइट? किसके बराबर होगा? डी एफ पी एच। डी एफ पी एच हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। यू अंडरस्टैंड? अब मुझे बताइए, आर यू कैन से इसको अच्छे से, डी एफ पी एच। यू अंडरस्टैंड? दिस इज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, देयरफॉर एफ एच, ये आ गया ए, इंटीग्रेशन ऑफ ए। इसको आप इंटीग्रेट कर सकते हैं ना, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में मैंने ले लिया। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट टोटल निकालने के लिए वी कैन इंटीग्रेट, जैसे मैंने आपको बताया, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो वर्टिकल कंपोनेंट हो, पर जहां पे जो फोर्सेस एक्ट करेंगे दे विल मेक द पैरेलल सिस्टम ऑफ फोर्सेस, सो वी कैन इंटीग्रेट दैट। अगर आपको टोटल
फोर्स निकालना है, क्योंकि ये जो स्मॉल स्ट्रिप था इसको मैंने दो कंपोनेंट में जो फोर्सेस थी ये इसके ऊपर ये फोर्स डीएफपी एक्ट कर रही थी, इस फोर्स को मैंने दो कंपोनेंट में रिजॉल्व किया, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड वर्टिकल कंपोनेंट। जो इसके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के ऊपर फोर्सेस होंगी, जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द फोर्स होगा उसको हम ऐड करके टोटल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ फोर्सेस निकाल सकते हैं। यू अंडरस्टैंड? तो DFPH दिस इज इक्वल टू, ये आपको ने किया, दिस इज इक्वल टू DFP इंटू साइन थीटा। यू अंडरस्टैंड? DFP इंटू साइन थीटा। एंड व्हाट इज योर DFP? तो DFP तो जैसे आपको पता है, जो DFP था, DFP दिस इज इक्वल टू रो इंटू G इंटू H इंटू DA, यही था। DFP दिस इज इक्वल टू रो इंटू G इंटू H इंटू DA। तो मैं इस DFP की जगह ये चीज पुट कर सकता हूं, सो आई कैन राइट हियर देयरफॉर FH इंटीग्रेशन A होल एरिया, DFP की जगह आप लिख लीजिए रो इंटू G इंटू H इंटू DA, राइट, साइन थीटा इंटू साइन थीटा इंटू साइन थीटा। यू अंडरस्टैंड? ये आपका आ गया। अब देखिए, अब ये DA साइन थीटा क्या है? व्हाट इज DA साइन थीटा? व्हाट इज योर दिस, अगर मैं कंपोनेंट की बात करूं, ये जो आपका कंपोनेंट है DA साइन थीटा, व्हाट इज दिस DA साइन थीटा? देखिए, दिस इज योर स्मॉल स्ट्रिप, जो आपकी स्मॉल स्ट्रिप है जिसका एरिया DA है। यू अंडरस्टैंड? तो इसका जो वर्टिकल प्रोजेक्शन है, अगर स्मॉल स्ट्रिप के वर्टिकल प्रोजेक्शन की बात करूं तो दिस इज द वर्टिकल प्रोजेक्शन ऑफ DA, जो एरिया है इस स्ट्रिप का, तो आप कह सकते हैं दिस इज DAB, राइट। एंड अगर मैं हॉरिजॉन्टल इसकी बात करूं, हॉरिजॉन्टल, तो ये आपका हॉरिजॉन्टल, ये आपका आ गया DAH एंड दिस इज एंगल थीटा। यू अंडरस्टैंड? यू अंडरस्टैंड हियर? तो ये जो आपका DAB है, जहां से देखिए फ्रॉम दिस, ये आपका वर्टिकल प्रोजेक्शन एंड दिस इज द हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन। तो DAB, this is the vertical projection of the area DA. You understand? Therefore, DAB upon DA, this is equal to sine theta, right? Right angle triangle, DAB upon DA, this is equal to sine theta. Therefore, DAB, this is equal to DA साइन थीटा। तो इसका मतलब ये है कि DA साइन थीटा जो आपका है, DA साइन थीटा जो है, ये आपका क्या है? दिस इज द वर्टिकल प्रोजेक्शन ऑफ द एरिया DA। तो मैं इसको DAB लिख सकता हूं। यू अंडरस्टैंड? साइन थीटा क्या है? दिस इज द वर्टिकल प्रोजेक्शन ऑफ द एरिया DA। तो ये मैं इसको लिख सकता हूं DAB। ये चीज आप नोट कर लीजिए, ये आपका DA था, ये जो स्ट्रिप मैंने इसको स्मॉल स्ट्रिप लिया, दैट इज इंक्लाइन लाइक दिस एंड इट्स एरिया क्या है? दिस इट्स एरिया इज DA, जो तो स्टार्टिंग में मैंने आपको दिया। इफ आई विल टेक द प्रोजेक्शन, ये आपका हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन, स्ट्रिप का जो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन होगा वो क्या होगा? एक हॉरिजॉन्टल लाइन होगी। अगर ऊपर से हम प्लेन में देखें इसको, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन जो है
ये आपका इसका हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन। और अगर इसका मैं वर्टिकल प्रोजेक्शन ड्रा करूं तो दिस इज द परपेंडिकुलर लाइक दिस इज द वर्टिकल प्रोजेक्शन ऑफ दिस। तो DAB ये जो वर्टिकल प्रोजेक्शन है, अगर मैं दिस इज द परपेंडिकुलर टू दिस हॉरिजॉन्टल, I will take this DAB upon DA. This is equal to sin theta. Therefore, DAB ये जो वर्टिकल प्रोजेक्शन है this is equal to DA sin theta. तो इसका मतलब है कि DA sin theta की जगह मैं DAB लिख सकता हूं। Yes, I can write. तो ये आपका आ गया। Therefore, FH इंटीग्रेशन ऑफ A आ गया रो इंटू G इंटू H into DAB, right? Rho into G into H into DAB. You understand this? So this is अब देखिए, अब जहां पे आ जाइए, ये जो आपका HDAB है, H इंटू DAB, राइट? ये आपका H इंटू DAB जो है, ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? व्हाट रिप्रेजेंट दिस थिंग? ये क्या रिप्रेजेंट्स करता है? देखिए, दिस इज द फर्स्ट मूवमेंट ऑफ स्मॉल एरिया ऑफ द स्मॉल स्ट्रिप। ये जो DA है, स्मॉल स्ट्रिप थी, इसका एरिया क्या है? DA, राइट? So this is the first movement of small area of the small strip, represents the first movement of small area DA. This represents the first movement of small area of DAB, right? Small area of DAB. You understand? DAB, first movement of small area DAB. तो इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूं। अगर मैं इसका इंटीग्रेशन लिखता हूं तो ये आपका आ जाएगा, ये H है तो दिस बिकम्स H बार इनटू DAB जो आपका होगा, इसको अगर मैं इंटीग्रेट करता हूं तो ये आपका आ जाएगा AB। यू अंडरस्टैंड? H बार A एरिया ऑफ वर्टिकल प्रोजेक्शन। यू अंडरस्टैंड? इंटीग्रेशन ऑफ दिस H बार HAB, दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ A, लिखो integration of HDAB. This I can write like this, HOR into AB of the whole area. तो मैं इसकी जगह ये लिख सकता हूं। So then आप कह सकते हैं therefore, जहां पे लिखिए FH रो इंटू G, राइट? रो इंटू G, ये तो कांस्टेंट है, ये तो कांस्टेंट बाहर ही जाएगा, और HDA जो इंटीग्रेशन है ये इसके बराबर है। दिस इज H बार इंटू D, H बार इंटू AB, right? H bar into A HV bar, H वर्टिकली आएगा ना, A B, राइट? AB, ये आ गया आपका इसका FH. This I have substituted in this equation. HDA bar I have substituted here. Suppose if this is equation 1, you can write on like this. That's a substitute. This H bar A, substitute this HDAB
This is equal to h bar into ab bar, and this I have substituted as guidance. तो अगर जहां से देखें, you will find that this is the magnitude of the force. This is the magnitude of the force. तो magnitude of the force जो होगा, magnitude of the force that is represented, जो आपकी force act करेगी, horizontal force which is acting on the vertical projection, right? Horizontal force जो है that represents the which is acting on the vertical projection of the area of the curved surface. जो curved surface का जो vertical projection होगा, उसके ऊपर जो force act करेगी, horizontal force जो act करेगी, that will give you the value of this FH, that is rho GH into AB bar. तो वर्टिकल प्रोजेक्शन के ऊपर जो फोर्स, हॉरिजॉन्टल फोर्स है, दैट विल सो यू कैन से, इसको लिख लेते हैं। जहां तक आपको चीजें क्लियर हैं तो इसको लिख लीजिए नोट में, इसको नोट में लिख लीजिए। दिस इज इंपॉर्टेंट वन। सो राइट डाउन हियर, नोट लिखिए, नोट। When the curved surface, is immersed in the liquid, right? When the curved surface is immersed in the liquid, the horizontal component of the hydrostatic force, the horizontal component of the horizontal component of the hydrostatic force. horizontal component क्या था? FH. horizontal component of the hydrostatic force acting on the curved surface, acting on the curved surface, acting when the curved surface is immersed in the liquid, the horizontal component will be, वो क्या है? will be the hydrostatic force acting on the vertical projection of curved area, राइट। तो जहां से आप देखिएगा कि जो आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, इस फोर्स का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, वो जो फोर्स जो आपकी हॉरिजॉन्टल फोर्स होगी जो कि वर्टिकल प्रोजेक्शन के ऊपर एक्ट करेगी, राइट, दैट विल गिव द hydrostatic force acting on the curved surface. You understand? When the curved surface is immersed in the liquid, the horizontal component of the hydrostatic force FH acting on the curved surface
will be the hydrostatic force acting on the vertical projection of the curved surface. जहां तक चीजें आपको क्लियर हैं, the things are clear to you. तो अब हमें अगर इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकालना है, इफ वी हैव टू फाइंड द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, तो हमें क्या क्या चीजें चाहिए होंगी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के लिए, बट वी रिक्वायर, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट FH. फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या चाहिए, वी हैव टू, हमें चाहिए वर्टिकल प्लेन, राइट. सबसे पहले हमें क्या चाहिए, दैट इज द वर्टिकल प्लेन. ड्रा वर्टिकल प्रोजेक्शन, यू कैन से. पहले फर्स्ट हमें चाहिए ड्रा वर्टिकल प्रोजेक्शन ऑफ द कर्व्ड सरफेस, राइट. अब दूसरा हमें क्या चाहिए, ड्रा वर्टिकल, फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड एच वी बार एंड ए वी बार. सो दूसरा क्या है, फाइंड एच वी बार एंड ए वी बार, राइट. फाइंड एच वी बार एंड ए वी बार. और दूसरा तीसरा क्या है, एफ एच जो होगा हाइड्रोस्टैटिक फोर्स, दिस इज इक्वल टू एफ पी वी. यू अंडरस्टैंड. तो हाइड्रोस्टैटिक फोर्स दिस इज इक्वल टू एफ पी वी, जो कि हमें अभी फाइंड आउट किया है, राइट. ऑन द वर्टिकल प्रोजेक्शन के ऊपर जो फोर्स एक्ट करेगी, दैट इज इक्वल टू द हाइड्रोस्टैटिक फोर्स एक्टिंग ऑन द कर्व सरफेस. तो ये चीजें आपको क्लियर हो गया, दिस इज क्लियर टू यू, यू अंडरस्टैंड. अब इसमें देखिए, अगर आप ये आपका है बॉल ऑफ नो यूज, राइट. इसके साथ दिस इज योर कर्व सरफेस, दिस इज योर कर्व सरफेस, 1/4 ऑफ द सिलेंडर, you can say this is a curved surface, right. 1/4 of the cylinder, this is the curved surface. There is a small strip here, right. तो अगर मैं right, or this is DFP, right. This force is DFP, this is R. R is the radius, you can say, right. R is the radius of this. और ये आपका, अब देखिए जहां से लेके, जो आपका जहां से लेके और जहां तक जो है, ये कितना है, दिस इज H, राइट. जहां से लेके जहां तक H है, मैं कहता हूं जहां से लेके, ये आपका फ्री सरफेस ऑफ वाटर भी ड्रा कर लीजिए आप. ये आपका फ्री सरफेस ऑफ वाटर, राइट, या लिक्विड जो भी है. सो दिस इज
जहां से लेके जहां तक, सपोज दिस डिस्टेंस इज के, राइट। ये जो उसका कर्व सरफेस का 1/4 ऑफ द सिलेंडर आई हैव टेकन, कर्व सरफेस क्या है, 1/4 ऑफ सिलेंडर, राइट, रेडियस r एंड विड्थ जो इसकी है, विड्थ इज इक्वल टू W, यू अंडरस्टैंड, विड्थ इसका W, जो K है, एंड अब देखिए इसको हम अगर वर्टिकल इसका प्रोजेक्शन ड्रा करते हैं, इफ आई विल ड्रा द वर्टिकल प्रोजेक्शन, you understand, if I will draw the vertical projection of this, right, if I will draw the vertical projection, ये आपके इस तरीके से बनेगा, just like this, this is the width like this, right, this is the vertical projection, ये आपका आ गया W, right, and this is R and R, you understand, ये क्या है, what is this, this is the vertical projection, this is your BP, vertical projection मैंने इसका ड्रा किया। और अगर मैं इसकी सेंट्राइड की बात करूं, अगर मैं इसका सेंट्राइड की बात करूं तो सेंट्राइड कहां पे होगा, सेंट्राइड सपोज दिस इज योर सेंट्राइड, राइट, ये आपका क्या है, सपोज दिस इज योर CG, और जो आपका प्रेशर होगा, ये पॉइंट ये होगा P, जहां पे आपका ये फोर्स जो है एक्ट करेगा, राइट, दिस इज द वर्टिकल प्रोजेक्शन of this, you understand this, so now अगर मैं इसका फोर्स की बात करूं, व्हाट इज द फोर्स हियर, यू अंडरस्टैंड, व्हाट इज द फोर्स FH,
therefore FH क्या था, रो इंटू जी इंटू ए एच बी बार इंटू ए बी बार, यही था। सो एच बी बार, दिस इज द 1/4 ऑफ द सिलेंडर, यू कैन से, राइट। ये क्या है, मैंने लिया 1/4 ऑफ द सिलेंडर, तो आप कह सकते हैं देयरफॉर एफ एच इज इक्वल टू, देयरफॉर एफ एच रो जी इंटू एच बार को मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूं, के फ्रॉम हेयर एंड प्लस K plus R by 2. You understand? This is the 1/4 of the cylinder. So I can write it like this: K plus R by 2. K अगर R जो है ये पूरा रेडियस है तो this is R by 2. तो K plus R by 2 into एरिया क्या होगा, R into W, एरिया होगा R into राइट। तो दिस इज, आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि आप अगर आपका जो वर्टिकल प्रोजेक्शन है इस हिसाब से, तो ये दिस यू कैन राइट इट लाइक दिस। दिस इज क्लियर टू यू, ये चीजें आपको क्लियर हो गया। तो दिस इज द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और ये जो आपकी फोर्स है, ये दिस इज द मैग्नीट्यूड यू विल गेट। द फोर्स की जो कहां पे एक्ट करेगी, द फोर्स विल एक्ट कहां पे एक्ट करेगी, द फोर्स विल एक्ट एट द सेंटर ऑफ प्रेशर विच इज बिलो फ्रॉम दिस, जो कि इससे क्या होगा, बिलो होगा। सेंटर ऑफ प्रेशर के ऊपर जो फोर्स है आपकी, वो सेंटर ऑफ प्रेशर पे एक्ट करेगी, और जो इसकी फोर्स की जो डायरेक्शन होगी, अगर मैं डायरेक्शन की बात करूं, ये आपका मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन जो होगी फोर्स की, वो इस तरीके से डायरेक्शन होगी। यू अंडरस्टैंड, दिस इज टूवर्ड दिस साइड, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। सो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यू अंडरस्टूड, निकालना सीख लिया। अब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट से क्या कंक्लूजन निकला, आपको क्या कंक्लूजन निकला, क्या आपको ऑब्जर्वेशन मिली कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो हाइड्रोस्टैटिक फोर्स का होगा इन केस ऑफ कर्व प्लेन, वो जो कंपोनेंट होगा दैट विल गिव द वैल्यू ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द हाइड्रोस्टैटिक फोर्स ऑन द वर्टिकल प्रोजेक्शन। वो आपको क्या देगा, मैग्नीट्यूड देगा फोर्स का, जो कि वर्टिकल प्रोजेक्शन के ऊपर, कर्व सरफेस का जो वर्टिकल प्रोजेक्शन है उसके ऊपर जो फोर्स एक्ट कर रही है, वो उसको उसका क्या देगा, मैग्नीट्यूड देगा। यू अंडरस्टैंड। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट से हमें मैग्नीट्यूड ऑफ द हाइड्रोस्टैटिक फोर्स मिलेगा इन केस ऑफ कर्व सरफेस। दिस इज क्लियर। अब आ जाइए आप वर्टिकल कंपोनेंट के ऊपर। यू अंडरस्टैंड। आप इसको मिटा दीजिए। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द वर्टिकल कंपोनेंट। So vertical component, that is FV. FV, this is the vertical component. सेम चीज है। सो अब आ जाइए आप किसमें, FV। FV, right? That is the vertical component and this is equal to, ये किसके बराबर होगा, इंटीग्रेशन A डी एफ पी स्मॉल फोर्स का बी, इंटीग्रेशन ऑफ डी एफ स्मॉल फोर्स का बी। यू अंडरस्टैंड। तो सेम था एज डी एफ वी, डी एफ पी बी क्या था,
जो DFPV था, जैसे मैंने आपको बताया था, अगर आपको DFPV निकालना है तो वो किसके बराबर होगा? DFPV दिस इज इक्वल टू, आई थिंक ये था आपका जी cos थीटा। क्या वैल्यू निकाली थी? DFPV की हमने वैल्यू निकाली थी, दिस इज इक्वल टू DFP, this is equal to, not rho g, this is equal to DFP into cos theta, right? So this is value। जब मैंने स्टार्टिंग में इसको रिजॉल्व किया था तो जो इसका वर्टिकल कंपोनेंट आया था वो किसके बराबर आया था? DFP cos theta, राइट? एंड DFP cos theta क्या होगा? ये सेम आप लिखिए, रो इंटू जी इंटू एच इंटू DA इंटू cos theta, राइट? अब ये DA cos theta क्या है? सेम वैसा कर लीजिए। ये आपका था, क्या थी? ये आपकी स्ट्रिप थी, दिस इज योर स्ट्रिप DA, दिस इज योर स्ट्रिप DA, और DA का ये आपका क्या है? वर्टिकल प्रोजेक्शन, एंड दिस इज योर horizontal projection, this is your horizontal projection and this is the angle this। तो DA cos theta, दैट ये क्या था? व्हाट इज DA cos theta? जहां से निकाल लीजिए आप। सो ये आपका है DFPB वर्टिकल प्रोजेक्शन है, ये आपका आ गया DFH हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन है। तो DFH अपॉन DA इज इक्वल टू cos theta, DFH upon DA from this right angle triangle, this is equal to cos theta, therefore DFH this is equal to DA into cos theta, right? DFH this is equal to DA into cos theta, DFH this is equal to DA into cos theta। तो आप पुट कर लीजिए, देयरफॉर जहां पे लिख लीजिए आप, देयरफॉर एफ बी इंटीग्रेशन ए DF PV क्या था? ये लिख लीजिए यहां पे, DFP इंटू कॉस थीटा, राइट? और therefore FV, what is DFP? What is your DFP? That is rho G H into DA into cos theta, DA into cos theta, and this is your DA cos theta। अभी मैंने ये किया, DA cos theta, this is equal to DFH, right? Therefore FV, इसकी जगह मैं DFH लिख सकता हूं, therefore FV रो इंटू जी इंटू एच, राइट? DA cos थीटा की जगह क्या लिख सकता हूं? इंटू DFH। क्या लिख सकता हूं? दैट इज इंटू DFH, that is equal to DFH। You understand this?
सॉरी, दिस इज नॉट DFH, दिस इज DAH। थोड़ा गलत कर दी मैंने। ये तो इसका प्रोजेक्शन था ना, ये आपका आ गया DAH, sorry, DAB, and this is your DAH, right? This is your DAH. This is your DAH. This is DAH. तो जहां पे DA cos थीटा की जगह क्या आएगा? देखो, DA cos थीटा की जगह ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो दैट इज DA this is DAH upon DA. This is equal to cos theta from this right angle triangle. Therefore, ये आपका जो DAH है, DAH, तो DAH this is equal to DA cos theta. तो आप DA cos theta की जगह DAH लिख सकते हैं, राइट? DA cos theta की जगह यू कैन राइट DAH, बड़ा कर लीजिए, DAH, this is DA cos theta, right? This is clear? That is, this is the horizontal projection of the area. ये आपका DA cos theta क्या है? DA cos theta, this is the horizontal projection of the area DA, and we can write it like this. Now you will get this equation. अब देखिए यहां पे अब मुझे बताइए यहां पे ये H इंटू DAH, H इंटू DAH, ये क्या है? व्हाट इज H इंटू DAH? ये आपका H है, H इंटू DAH क्या है? व्हाट इज दिस? सपोज करो मैं, ये आपका देखो यहां पे ये इस तरीके से ये स्मॉल स्टेप है, राइट? दिस इज योर स्मॉल स्टेप। मैं इसका स्मॉल स्टेप का बनाता हूं। दिस इज योर स्मॉल स्टेप। ये जो स्मॉल स्टेप है, दिस इज योर स्मॉल स्टेप हाफ एरिया DA, राइट? मैं इसको एलैबोरेट करके बनाया। अगर मैं इसका हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन, इसका मैं अप टू द फ्री सरफेस ऑफ वाटर लेता हूं, मैं हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन अप टू ये आपका this is the horizontal projection up to the free surface of water. ये आपका horizontal projection है। इसी तरीके से इसका horizontal projection up to the free surface of water, right? Like this. Right? If I will draw the horizontal projection up to the
फ्री सरफेस ऑफ वाटर, तो ये आपका जो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन होगा So this is you can say this is your horizontal projection up to the free surface of water, right? ये आपका क्या है? horizontal projection up to the free surface of water. So ये आपका जो HP है horizontal projection, this is equal to DAH, right? horizontal projection क्या है? DAH. और जो small strip का from the free surface of water, suppose this is your free surface of water, ये आपका फ्री सरफेस ऑफ वाटर जहां पे है, यही चीज है जो मैंने यहां पे ड्रॉ किया, इसको सेपरेट किया, ये आपका फ्री सरफेस ऑफ वाटर है, दैट इज। और जहां से लेके जहां तक जो इसकी हाइट है, सॉरी, जहां से लेके जहां तक जो इसकी हाइट है वो कितनी है? h, राइट। तो आप जहां पे देखिए h इंटू DAH, ये आपकी डेप्थ है, ये इसका आपका हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन का एरिया है। सो देयरफॉर आप लिख सकते हैं h इंटू DAH, इसको मिटा दीजिए, यहां पे लिखेंगे सो आप कह सकते हैं देयरफॉर h इंटू DAH, अगर मैं इसकी बात करूं h इंटू DAH, ये अगर है h इंटू DAH, तो ये दिस इज इक्वल टू वॉल्यूम, स्मॉल वॉल्यूम dV, एरिया इंटू डेप्थ, दिस इज वॉल्यूम। और अगर ये आपका ऐसे हो A H इंटू DAH, DAH क्या है? दैट इज द horizontal projection of the area, right? This is horizontal projection है, this is the horizontal projection of the area, right? तो this is equal to B, ये क्या है? ये पूरा टोटल वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ दिस कर्व, कि इसमें ये जो पानी है आपका, ये कितना वॉल्यूम है? दिस इज इक्वल टू दिस वन। तो therefore FB vertical projection, force in the vertical projection, this is equal to rho into G into B, right? Rho into G into V, total volume, rho into G into V, right? Rho into G into B, and this can be written as rho into V क्या है? What is density into volume? This is equal to mass, right? This is equal to mass, और mass into G, mass। तो अगर मैं कहूं rho into B into G, this is equal to mass into G, and this is equal to W weight, right? So therefore FV is equal to W. You understand? FV क्या है? ये आपका weight of the liquid contained in the curved surface, weight of the liquid contained in the curved surface, or you can say volume of the liquid, जहां से वॉल्यूम भी मिलेगा, volume of the liquid contained
between the curved surface and from the free surface of the water. You understand? तो जहां से आपको वॉल्यूम अगर आपने कैलकुलेट करना है कि जहां पे कितना वॉल्यूम लिक्विड का इसके बीच में होगा, that you can calculate by calculating the force in the vertical direction. You understand? That is FV. जो फोर्स थी आपकी, बिकॉज DFP को स्मॉल कंपोनेंट का जो फोर्स लिया था, मैंने उस फोर्स को दो कंपोनेंट में रिजॉल्व किया था. एक थी आपकी हॉरिजॉन्टल फोर्स. हॉरिजॉन्टल फोर्स से हमें क्या मिला? मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स ऑन द वर्टिकल प्रोजेक्शन. और जो आपकी वर्टिकल फोर्स थी, जहां से हमें वी हैव गॉट दैट द वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड कंटेन्ड बिटवीन द कर्व्ड सरफेस एंड द फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड. तो वॉल्यूम weight of the liquid that we can calculate from the FV value by calculating the value of FV. और जहां से हमें क्या मिलेगा? weight or the volume of the liquid. You understand this? तो जहां से हमें ये चीजें मिल जाएगी. तो इसको W को लिख लें आप. क्या है? W is the right on. W is the weight of the liquid in volume W is the weight of the liquid contained in volume between the weight of the liquid contained in the volume between the curved surface and horizontal projection up to the free surface of liquid, up to the free surface of the liquid or water. You understand? तो ये आपका W आ गया है, राइट? तो अगर मुझे इसका टोटल वॉल्यूम निकालना हो, देखिए, अगर मुझे टोटल वॉल्यूम निकालना हो, जहां से इसको ये कर लीजिए आप, अगर मुझे टोटल वॉल्यूम निकालना हो कि कितना कर्व सरफेस के ऊपर वेट ऑफ द लिक्विड है या वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड है, एक तो होगा इसका वॉल्यूम ले लीजिए प्लस द वॉल्यूम ऑफ दिस क्यूबाइड. यू अंडरस्टैंड? प्लस द वॉल्यूम ऑफ दिस क्यूबाइड
तो ये आपको क्या मिलेगा, टोटल वॉल्यूम मिलेगा। यू अंडरस्टैंड, ये आपको मिलेगा टोटल वॉल्यूम। तो ये क्या होगा, पाई बाई 4 इंटू पाई बाई 4 इंटू 1/4 है ना, ये 1/4, दिस इज इक्वल टू आर स्क्वायर, दिस इज द 1/4 ऑफ द सर्कुलर सिलेंडर। तो इसका क्या होगा, 1/4 पाई आर स्क्वायर इंटू, सपोज इफ आई से W is the width of this, right? W क्या है इसका, width है into W. This is the volume of the curved surface, pi/4 r square, because I have taken the 1/4 of the cylinder. Area into width, this is volume of this, plus क्यूबाइड का क्या होगा, क्यूबाइड का क्या होगा, जो जहां से लेके जहां तक डिस्टेंस है, ये है ना क्यूबाइड का, दिस इज के, राइट, ये के आया, एंड देन इनटू W is the width, K into W, और दूसरा जहां से लेके जहां तक कितना है, दिस इज R, राइट, K into W into R, K into W into R, so therefore R W आप कॉमन ले लें, तो ये क्या आएगा, pi/4 इंटू R प्लस K, वेयर K इज द डिस्टेंस, ये आपका जो डिस्टेंस होगा जिसके आगे आपका कर्व सरफेस होगा, ऊपर तो ये वर्टिकल होगा या वर्टिकल बाल से होगा, K इज द डिस्टेंस, R इज द रेडियस, यू कैन से R क्या है इसका, आपका रेडियस है, एंड K इज द डिस्टेंस, एंड W दैट इज द विड्थ ऑफ द सिलेंडर, यू कैन से। तो ये आपका था हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑन द कर्व सरफेस सबमर्ज्ड इन द लिक्विड। तो जहां से आपको, अगर आपको रिजल्टेंट फोर्स अब आपको निकालना है, देखिए इसमें रिजल्टेंट निकालना है, एफ एच और एफ बी आपने निकाल लिया, तो रिजल्टेंट क्या होगा, रिजल्टेंट आपका जो होगा वो होगा आपका एफ एच का स्क्वायर प्लस एफ बी का स्क्वायर, राइट, दिस इज योर रिजल्टेंट, राइट। और अगर आपको फाई की वैल्यू निकालनी है, tan फाई, दिस इज इक्वल टू एफ बी अपॉन एफ एच, राइट। तो ये चीजें हैं, बट आपको हमेशा ये हॉरिजॉन्टल फोर्स डिफरेंट एंड दिस डिफरेंट, क्यों, क्योंकि इन दोनों का अपना एक सिग्निफिकेंट है। हॉरिजॉन्टल फोर्स जो होगी उससे हमें क्या मिलेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ द हॉरिजॉन्टल फोर्स से वी विल गेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स विच इज एक्टिंग ऑन द वर्टिकल सरफेस, which is acting on the vertical projection of the curved surface। और FB से हमें, जो FB से हमें मिलेगा weight of the liquid or the volume of the liquid which is contained between the curved surface up to the free surface of the water, you understand। तो this is, you can say, ये आपका आज जो टॉपिक था, that is hydrostatic forces on the curved surface submerged in the liquid, you understand। देखिए ये था कर्व स्पेस, इसके अंदर है। अगर सपोज करो आपका कर्व स्पेस इस तरीके से है, ये आपका सेम है, सपोज ये आपका कर्व सरफेस है, ये दिस इज योर बॉल लाइक दिस, क्योंकि ये आपको ये बताना जरूरी था, जिस आप इस तरीके से है, राइट,
right? This is your curved surface like this. और जो आपका फ्री सरफेस ऑफ द वाटर है, दिस इज योर फ्री सरफेस ऑफ द वाटर, फ्री सरफेस ऑफ वाटर, ये आपका वाटर है, यू अंडरस्टैंड? ये आपका फ्री सरफेस ऑफ द वाटर है लाइक दिस। सेम प्रोसीजर है इसका भी। ये आपका, ये आपने सपोज करो ये आपकी स्मॉल स्टिप है, दिस आपने स्मॉल स्टिप कंसिडर किया, राइट? और ये आपकी जो फोर्स है, अब ये फोर्स इधर से एक्ट करेगी जहां से जे, इसकी डायरेक्शन सर, फोर्स की डायरेक्शन चेंज होगी, ये होगी आपकी डी एफ पी, normal to this, right? DFP, because the free surface of the water that is outside the curved surface like this, DFP, you understand that? अच्छा, इसमें जो आपकी DFH, DFHP and DFPB, ये दोनों सेम वैल्यू आएंगी जैसे आपने पीछे किया, सेम थिंग इज देयर। DFH और D, जैसे डी एफ बी था, डी एफ बी कॉस थीटा, डी एफ बी क्या था, डी एफ कॉस थीटा, एंड डी एफ एच क्या था, ये डी एफ साइन थीटा, सेम चीज। अब डी एफ क्या है, दैट इज रो जी डी ए एच कॉस थीटा साइन थीटा। तो जो आपका मैग्नीट्यूड होगा, जहां पे जो मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ एफ एच एंड एफ वी विल रिमेन सेम वेदर द, तो जहां पे ये कंडीशन बनेगी कि जो मैग्नीट्यूड आपका एफ एच का मैग्नीट्यूड आएगा, एफ एच की वैल्यू और जो एफ बी की वैल्यू, मैग्नीट्यूड जो है इन दोनों का सेम आएगा जैसे आपने पहले किया था, राइट? मैग्नीट्यूड दोनों का सेम होगा, देयर इज नो डिफरेंस इन दैट, देयर इज नथिंग टू कंफ्यूज देयर सेल्फ, ओनली यू कैन से दैट द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, जो उस वक्त जो फोर्स थी वो आपकी इस डायरेक्शन में थी, बट इस वक्त जो आपकी फोर्स की डायरेक्शन है वो क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है, यू अंडरस्टैंड? इसकी क्या था, अपोजिट डायरेक्शन में है। और जब मैं इसको दो कंपोनेंट में रिजॉल्व करूंगा, दो कंपोनेंट में, जैसे आपका कंपोनेंट आया था एफ एच, एफ एच क्या कंपोनेंट था, रो इंटू जी इंटू के प्लस रो इंटू जी के प्लस आर बाई टू, दैट इज के प्लस आर बाई टू इंटू आर इंटू डब्ल्यू, यही कंपोनेंट आया था आर एफ एच का, वहां पर जहां पर भी ये सेम कंपोनेंट आया। और सिर्फ इसमें जो मैग्नीट्यूड इसका सेम होगा, मैग्नीट्यूड सेम है, बट इसकी जो उस वक्त डायरेक्शन क्या थी, इस तरीके से डायरेक्शन थी, बट इसकी जो डायरेक्शन होगी वो इस तरीके से डायरेक्शन होगी, अपोजिट डायरेक्शन इज अपोजिट, मैग्नीट्यूड इज डिफरेंट। इसी तरीके से जो एफ वी है, एफ वी वो भी आपने निकाला, क्या था, रो इंटू जी इंटू रो इंटू जी इंटू पाई बाई 4 आर प्लस के, पाई बाई 4 आर प्लस के इंटू आर डब्ल्यू, राइट? तो उसमें जो वर्टिकल फोर्स था, जब ये वाला केस था, अगर पानी इधर था, उस वक्त जो वर्टिकल फोर्स था उसका डायरेक्शन इधर था, राइट? बट जहां पे हम क्या कंसिडर करेंगे, सेम चीज हम कंसिडर करेंगे कि इसमें ये क्या है, इमेजिनरी फ्लूइड है, यू अंडरस्टैंड? इसमें क्या है, इमेजिनरी फ्लूइड है, और ये जो फोर्स जो होगा, अगर इधर होता तो इसका डायरेक्शन नीचे था, और ये अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स होगा, मींस इसका जो डायरेक्शन होगा फोर्स का वो क्या होगा, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, दिस इज द डायरेक्शन
of FH and direction of F. You understand? Rest everything is same. So there is no problem at all. चाहे न्यूमेरिकल आपको इस तरीके से आए, एक पानी जो है गेट के कर्व गेट के इनसाइड पे है, आउटसाइड पे है, सारी चीजें सेम है, एवरीथिंग इज सेम, बट ओनली यू विल गेट the direction of the force is different, horizontal force as well as the vertical force, rest is same. So this is about your hydrostatic force on the curved surface submerged in the liquid. अब इनके मैंने सारे प्लेन आपको करवा दिए, वर्टिकल प्लेन, इंक्लाइन प्लेन, हॉरिजॉन्टल प्लेन, कर्व प्लेन एंड एज वेल एज द लॉक गेट. अब इनके कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे हम, एक एक दो दो न्यूमेरिकल्स सभी का करेंगे, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड द एप्लीकेशन वेल, राइट. तो इसके हम कुछ न्यूमेरिकल करेंगे. ये जो आपको बताया कर्व सरफेस का वेरी इंपॉर्टेंट वन, इसके करेंगे. लॉक गेट का भी आपको एक न्यूमेरिकल करवाएंगे जिसमें आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन होगी और कंप्लीट आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि हाउ वी विल कैलकुलेट द फोर्सेस और किस तरीके से करना है, राइट. तो आज का जो लेक्चर है, दिस इज up to this one only. So thank you very much for learning it, for watching this. So thank you.